Welcome, students, to the next topic of the chapter federalism. In the last topic, we have learned different features of federalism, different type of federations, right? And after that, we have learned threefold distribution, different list, status of Jammu and Kashmir, elimination of Article 370, or status of Union territories, powers of court, etc. We discuss. In this class, we will discuss about how is federalism practiced. आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखे रखा है तो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा. श्योर, 100% श्योर. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but it is not sufficient. स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस है. All the schools are having their own rules and regulations. If what is the purpose of making rules and regulation if the students and teachers are not following that? Tell me. कोई फायदा है? No फायदा, कोई फायदा नहीं. So we have to follow the only school का जो वो सब कुछ डिसिप्लिन स्कूल है हम बोल सकते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. The same way कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखने से नहीं होता है, राइट? We should understand. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड डाइवर्स कंट्री भी है. उस डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. We should live together. Then federation is possible, right? The first in this federalism topic, मतलब जो how is federalism practiced in topic, we discuss about three main subtopic. One is linguistic state. Linguistic state means a state based on the language. Second, language policy. Third, center or state relation. Center or state का relation के बारे में. The creation of linguistic state, that was the first and foremost test for democratic politics in our country. हमारा कंट्री का सबसे फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. क्यों? क्योंकि लीडर्स ने पहले बोला था आफ्टर इंडिपेंडेंस विल डिवाइड द कंट्री बेस्ड ऑन द लैंग्वेज सो दैट इट एंश्योर द सेम लैंग्वेज वाले सब एक साथ रहें. इट वाज अ गुड आइडिया. You can see the map also, page number 18 and 19. Two maps are there. One is the old one, another is the new one. You can easily recognize number of states were there in 1947. And latest कितना states है देख लीजिए. Please sit with the test book also, if you have it. So creation of linguistic state, that was the first and foremost test for the democratic politics in India. अब आप सोचेंगे सर टेस्ट कैसे? टेस्ट ही है, सक्सेस हो गए हम लोग. कैसे? ये बात करता हूँ. जो मेनी ओल्ड स्टेट वानिश्ड, मतलब जो 1947 में के बाद पुराना स्टेट वानिश हो गया, नया स्टेट आ गया, बाउंड्रीज नया बना दिया, एक साथ वन लैंग्वेज वाले एक साथ रहे, ये सब कुछ डिसाइड कर दिया. 1947 के बाद की बात बोल रहा हूँ. नॉट ऑल द स्टेट्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस. Not all the states. Some state divided based on the culture, ethnicity, geography. Example, Nagaland, Uttarakhand, you know, these are the example book में Jharkhand, Uttarakhand, Nagaland, etc. are divided as a state based on the geography, ethnicity or culture, not based on the language. Tamil Nadu based on the language, Andhra Pradesh based on the language, Odisha, like that, many states are based on the language, but some states are not based on the language. And one more thing, some leaders of India, they were not satisfied with the decision of the dividing the state based on the language. अब आप सोचेंगे सर जी ऐसा कौन से लीडर्स हैं? स्टेट को तो डिवाइड करना लैंग्वेज के बेसिस पे, बिकॉज एक ही लैंग्वेज बोलने वाले सब एक साथ रहें, ऐसे तो होना चाहिए. डियर्स, वो लीडर्स भी ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो आपका अच्छा ही चाहते थे, ऐसे ना. लीडर्स हमेशा हमेशा कोई ना कोई साइड से अच्छा, करप्टेड तो होंगे लेकिन कोई ना कोई साइड से अच्छा सोचेंगे. आई थिंक दोस डेज लीडर्स
They always prefer the goodness of the country. दैट इज वाई वो ऐसा सोच आ गया है. वो सोच क्यों आया पता है? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, कंट्री डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड व्हाट हैपेंड? पेनफुल ब्लडी सिचुएशन, bloody partition we can say. Number of people, thousands of people murdered, and many things happened. So these leaders, they thought that that incident will repeat again. If you are dividing the country based on the language, हो सकता है कि तमिलियंस आंध्र प्रदेश में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटका के लोग तब केरला में रहते हैं, ये सारे साउथ का स्टेट्स हैं. सो उस कंडीशन में क्या होगा? वहाँ पर हंगामा होगा. जब स्टेट डिवाइड करेगा, आंध्रा का लोग बोलेंगे उसके अंदर जो अगर तमिलियन रहते तो भाग यहाँ से भाग. तमिलियंस केरलों का लोग बोलेंगे भाग यहाँ से भाग. फिर क्या करेंगे? लड़ाई, सिविल वॉर, श्रीलंका की तरह. सो दैट वाज द रीजन व्हाई दे स्कैर्ड और फेल्ट वेरी बैड. लेकिन बाद में उनको पता चला है कि हमारा जो फियर वो बेकार था. अब आप देखो, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज ओनली डिवाइडेड, कितने अच्छे जो क्या बोले बॉन्डिंग है हमारा स्टेट्स आपस में, राइट? इफ एनीथिंग हैपन इन वन स्टेट, अदर्स विल हेल्प, इजंट इट? केरला एक्सपीरियंस द फ्लड्स द लास्ट ईयर, सो ऑल द स्टेट्स हेल्प. सेम as it is once Gujarat the hardly hit this earthquake and all the states helped. जम्मू एंड कश्मीर में मेघ विस्फोट हो गया था, isn't it? क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ हो गया था, बाढ़ हुआ था, मीन्स फ्लड्स हुआ था, ऑल द स्टेट हेल्प. सेम as it is. इतना कॉपरेशन एंड कोरिलेशन है स्टेट्स आपस में, जो उस लीडर्स का जो डर है वो बेकार है करके प्रूव कर दिया. बट जो बुक में नहीं है वो कहानी में बताता हूँ आपको, जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर. फाइनल लीडर्स ने मना किया, ये डर से विथहेल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया. बट पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स वो सपना देके बैठा था, अब हमारा अपना स्टेट बन जाएंगे. तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलियंस के लिए तमिलनाडु, मलयालम लोगों के लिए केरला, मणिपुर लोगों के लिए मणिपुरी भाषा के लोग बात करने वाले के लिए मणिपुर, बांग्ला लैंग्वेज बात करने वाले को बंगाल. इस तरह सपना देके बैठा था. तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आ गया, नो क्रिएशन. आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया, एक कांग्रेस लीडर था पोटी श्रीरामुलु. आपका बुक में ये नहीं है, पढ़ना भी नहीं है आपको, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ. पोटी श्रीरामुलु उन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल किया है. भूख हड़ताल किया, हमें अपना स्टेट चाहिए. आपने तो प्रॉमिस किया था फ्रीडम से पहले, फ्रीडम फाइट के टाइम में प्रॉमिस किया था कि आपको स्टेट मिलेगा. हम इसीलिए तो पार्टिसिपेट भी किए हैं. नाउ यू आर टेलिंग दैट वी विल नॉट गेट, इट इज नॉट जस्टिस. सो भूख हड़ताल किया. इस पोटी श्रीरामुलु जी ने 56 डेज फास्ट कर दिया. फास्ट अनटू डेथ करता है ना, जो भूख हड़ताल किया है. 56th डे खत्म हो गया वो, मतलब ही एक्सपायर्ड. भाई साहब उसके बाद क्या हो गया, आंध्रा का लोग, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश. दे वर रेडी टू वॉट एवर दे वॉन्ट, मीन्स पोटी श्रीरामुलु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था. Isn't it? People totally attracted towards this Potti Sriramulu, and they were on the road, streets. They started to demolish all the things, started to destroy the things, destroy the government offices, public vehicles. इतना हंगामा किया है. ये देख करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, आंध्र प्रदेश को अपना दर्जा दिया है. इस तरह स्टेट्स क्रिएट कर दिए. लेकिन है हमारे को, हम ये बता सकते हैं आज लीडर्स बहुत खुश है, बिकॉज आपस में स्टेट बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे क्या बोलेंगे रिलेशन से आजकल रह रहे हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. देखिए हम ये बोलेंगे. अगला है आपका लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी के पढ़ने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू. दिस इज द सेकंड टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का, हमारा कंट्री का सेकंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन का. इंडियन फेडरेशन का सेकंड टेस्ट है कि जो आपका लैंग्वेज पॉलिसी. अब आप बोलेंगे सर टेस्ट बोल रहे, कहाँ पर टेस्ट हो रहा है? टेस्ट तो हो रहा है. आप बताइए हमारा नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? आप बोलेंगे इमीडिएटली, आप बोलेंगे सर हिंदी.
Hindi is not the national language. We never considered any language as the national language, but we have given the position to Hindi and some other languages, mainly Hindi and English as the official language. ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा और भी किसी को स्केड्यूल्ड लैंग्वेज को माना जाता है, कुछ और है, बता देते उसके बारे में। आप भी बोलेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। वाई? बिकॉज ओनली 40% ऑफ इंडियंस आर यूजिंग हिंदी एज द मदर टंग। हिंदी को अपना मदर टंग में 40% पीपल आर यूजिंग, रस 60% पीपल आर यूजिंग वेरियस अदर लैंग्वेजेस, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बात कर रहे हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग्स में जो आपने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ था कि हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना करके, लेकिन लास्ट में नहीं बना पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओनली 40% ऑफ हिंदी इंडियंस आर यूजिंग हिंदी एज द मदर टंग, अदर्स आर यूजिंग अदर लैंग्वेजेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक a different language. Number of states are there Hindi is not using, like Kerala, their own language, Malayalam, Tamil Nadu, Tamil, Andhra Pradesh, Telugu, Karnataka, Kannada, Manipur, Manipuri, you know, West Bengal, Bangla, Gujarat, Gujarati, number of states, their own languages. So central government is not imposing this language should be the national language, this language should be used by all the states, is conditioned them. Besides Hindi, there are languages recognized as scheduled languages. Total 22 scheduled languages, including Hindi. 21 plus Hindi, 22 scheduled languages. If you are a candidate of central government examination, you can choose any one of this language. Understood? कोई भी language आप choose करके exam लिख सकता है। You can see that board examination में आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और before filling the application also they will ask in which language you want to write. So you can opt your own language. Isn't it? So ये condition है। And the maximum work of government takes place in the official language of that concerned state. आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेट में अपने अपने लैंग्वेजेस से स्टेट हैविंग द अथॉरिटी टू यूज देयर ओन लैंग्वेजेस फॉर द डे टू डे वर्क। हर स्टेट को अपने अपने लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंडिया में जो हिंदी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, ध्यान रखना आपको, नहीं दिया गया। रीजन 40% पीपल आर यूजिंग हिंदी एज अ मदर टंग, रेस्ट ऑल आर यूजिंग सम अदर लैंग्वेज। हाफ भी नहीं है इसी वजह से। और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस से कैंडिडेट of a central government examination can use any of these 22 languages, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी जो दिया गया 22 languages में कोई भी यूज कर सकता है, right? And in our constitution it was made clear that the use of English का यूज 1965 में खत्म करना है, बट ये भी हंगामा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया 1965 तक इंग्लिश कंटिन्यू करने दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इंग्लिश लोग आया था, उन्होंने दिया है, उनका सब कुछ चल रहा है, 1965 में इसको खत्म करना है। बट क्या हो गया? मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स दे अपोज दिस, दे थॉट दैट दिस इज अ प्लान फॉर इम्पोजिंग हिंदी ऑन आवर ऑन स्टेट्स। उन्होंने सोचा कि ये एक ट्रिक होगा कि इंग्लिश बंद करके हिंदी को इम्पोज करेंगे हमारा स्टेट में। इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट टोल्ड गोइंग टू टेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, बिकॉज we are unaware of this Hindi and all, especially तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जो डिसीजन बहुत बड़ा सा वायरल हो गया। तमिलनाडु पीपल ने जो सेम जो पोटी श्रीरामुलु जी एक्सपर्ट हुआ था, दैट टाइम जो लोग रास्ते पे आए, सेम आज इट इज तमिलनाडु में लोग रास्ते पे आ गया। दे स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक सर्विसेज एंड एक्सेट्रा। एट लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथड्रॉ द डिसीजन and they have taken this English and Hindi both as the official language, दोनों को official language कर दिया। Suppose you are appointed for a central government job, you will get both the languages. Letter, your appointment is also in both the languages. Question paper is also in both the languages, Hindi and English, right? So Hindi and English considered as the official language.
बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्या बोलेंगे कि जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिंदी को जो प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दे आर फोर्सली दे आर इम्पोजिंग द यूज ऑफ हिंदी इन अदर स्टेट एंड ऑल, ये मत सोचना, ठीक है। और अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहा कि इम्पोज टू हिंदी ऑन दम, वो जस्ट हिंदी को प्रमोट करने के लिए जस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनका डिमांड तो कंटिन्यू हो गया, उनके डिमांड को फॉलो हो गया, इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आप दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, बट स्टेट हैविंग देयर ओन लैंग्वेजेस ऑल्सो, ये भी आप सोच लेना, समझ लेना। कौन सी स्टेट में हंगामा हुआ था? तमिलनाडु। नॉट ओनली तमिलनाडु, मणिपुर ऑल्सो, देखिए बुक में तो तमिलनाडु दिया है, मणिपुर ऑल्सो हैपेंड द वायलेंट क्लैशेस एंड ऑल, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन बैक देयर डिसीजन, ठीक है, ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह समझना है। सेंट्रल और स्टेट का डिविजन, सेंट्रल मीन्स सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? अभी नरेंद्र मोदी जी जो सरकार है वो, और स्टेट गवर्नमेंट का, इन दोनों का रिलेशन 1990 से पहले और 1990 के बाद, ये दोनों आपको समझना है। 1990 से पहले, वो बोलने से पहले आप अपना बुक देखो, पेज नंबर आई एम सॉरी, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 में आप देख लीजिए, दो पिक्चर है। एक तो जो ऊपर का पिक्चर देखो, हु इज स्टैंडिंग, हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, इज इट एबल, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन? द हेडिंग लिखा है, द स्टेट प्लीड फॉर more powers, the state plead for more powers, right? Indira Gandhi is standing, she was the then prime minister, and state को जो power दे रहा है उसका मतलब जो states are standing with a bowl begging for powers। देखा हमने सबसे पहले खड़े कौन है? केरला। अब आप सोचेंगे ये ऐसा क्यों, केरला सबसे क्यों खड़े हैं? और इंदिरा गांधी देखो मुंह दिखा रही है, फेस दिखा रही है, उस आपकी चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो, ये जो बुक में नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो चीफ मिनिस्टर जो खड़े हैं ना केरला का, EMS नंबूदिरी-पाड, इसका नाम है EMS नंबूदिरी-पाड। नंबूदिरी मीन्स ब्राह्मण को कहते हैं, ठीक है, वहां पर। सो दिस पर्सन इज बेगिंग पावर फ्रॉम इंदिरा गांधी, बट शी इज नॉट विलिंग टू गिव। व्हाई? बिकॉज Indira Gandhi, she was from Congress, and this EMS, he was from Communist Party, another party. That means सेंटर में एक पार्टी, स्टेट में अनदर पार्टी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर में अगर एक सेम पार्टी, दोनों सेम पार्टी नहीं तो they will not give proper power. Indira Gandhi is not willing. That time before 1990, central government having the authority, they misuse the constitution and they are able to dismiss the state government also। state government का अगर एक्टिविटी अच्छा नहीं लगा तो इस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस भी कर सकता था पहले 1990 से पहले। And Kerala is the state having the non-Congress government, right? Non-Congress government. This was आपको आइडिया मिला होगा 1990 के पहले की कहानी क्या है। Central and state, maximum state and center was ruled by the same political party, that is Congress. So अगर कुछ अगर नहीं दिया, पावर नहीं दिया, तो स्टेट का कांग्रेस कुछ नहीं बोलते। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नॉन कांग्रेस वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, इस नंबूदिरी पार्ट का गवर्नमेंट को डिसमिस भी किया है एक बार, राइट? सो पावर शेयर नहीं करेंगे। लेकिन 1990 के बाद है ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम टोटली चेंज हो गया, बिकॉज ऑल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, राजीव गांधी का खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया। द पीरियड सो द डिक्लाइन ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। सेंट्रल में जो कांग्रेस का इंपॉर्टेंस कम हो गया, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी का जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया, एंड किसी पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिला। नॉट अ सिंगल पार्टी गॉट द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो many party together to form a government, that is known as coalition government। पूछेंगे व्हाट इज coalition government?
different party, if a major party or majority, a major party not approving the majority in the parliament, that time different party will form government and will show the majority. Such government is known as coalition government. और सेकंड फिगर जो दिया है वही है, देखो पेरिल्स ऑफ रनिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट, आप पेज नंबर 21 में देख लीजिए, आपका बैठा हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट। देखो वाजपेयी जी है, एक कार्टून में लिखा है वाजपेयी, और नीचे देखो कौन कौन है, जयललिता जी है, ममता बनर्जी भी है, चंद्रबाबू नायडू हैं, नंबर ऑफ पीपल। अगर इनमें से अगर एक भी निकलेगा ना, क्या काम, वाजपेयी जी गिर जाएंगे, बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट है। इन दिस कंडीशन ही हैज टू एक्सेप्ट द, क्या है कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में, ही हैज एक्सेप्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स। कोलिशन गवर्नमेंट के बाद क्या कर दिया, सिनारियो चेंज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड उनको तो मानना शुरू कर दिया। एक बिकॉज रीजनल पार्टी का इंपॉर्टेंस सेंटर में हो गया, सेंटर में रीजनल पार्टी का इंपॉर्टेंस हो गया। साथ में क्या कर दिया, जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। अपने मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी कर दिया है। तो आपको रिलेशन सेंटर से रिलेशन पूछे तो वो पोर्शन आप रीड कर लेना, उसमें आप पहले बोल देंगे क्या है, जो 1990 से पहले रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल वाज सेम। नॉन कांग्रेस नॉन रूलिंग पार्टी मतलब सेंट्रल में जो रूल ना करने वाले स्टेट पार्टी को पावर तो कम देते थे, isn't it? Central government often misuse the constitutional provisions and dismiss the state government before 1990, ठीक है। जो भी राइवल पार्टीज अगर रूल किया है, एग्जाम्पल केरला का मैंने बोल दिया, राइवल पार्टी का रूल कराए तो उनको डिसमिस कर देते थे, ठीक है। बट दिस इज अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ, दिस विल अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म का स्पिरिट का अंडरमाइन करने वाली बात है। बट 1990 के बाद सब चेंज हो गया सिनारियो, ये आपको रीजनल पार्टी का जो फ्लरिशनेस आपने देखा है, कोलिशन गवर्नमेंट बन गया तो स्टेट पार्टी को इम्पोर्टेंस मिल गया, ठीक है, और अलायंस में आ गया, ये सब कुछ बोलेंगे, न्यू कल्चर आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि किसी को आर्बिट्री मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन और स्टैंडर्ड का अच्छा हो गया पहले से, राइट। इतना करेंगे हम, उसके बाद इसका बोर्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू। So dear students, the topic is how is federalism practiced. As I told you, it is not sufficient that constitutional provisions, only constitutional provisions are necessary to practice federalism, but that is not sufficient. So we discuss about the linguistic states. Linguistic state मतलब language based states. Government of India decided to divide the state based on the languages, but not all the state based on the languages. Some states are based on the culture, ethnicity and geography, such as Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand. They were divided based on the geography, culture and ethnicity. Then during the division of these states, are some of our national leaders having some fear also, because that lead to the disintegration of the country, like division of India into Pakistan during 1947. So that fear, बाद में हमने देखा है तो fear ही नहीं रहा, because all the states they are very cooperatively जो रह रहे हैं आजकल, they are supporting also each other, right? And इसके अलावा मैंने कहानी बताया था आंध्र प्रदेश का पोटी श्री रामलू जी के बारे में, that also listen based. It is not in the textbook, but for the knowledge only I have given that. Next, language policy के बारे में बता दिया. The second step, this was the first step, linguistic stage. First test था हमारा. Second test है आपका language policy. Language policy में आपको मैंने बता दिया जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटी था उसमें जो क्या बोले डिबेट्स हुआ था, और कौन सी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन लीडर्स दे फोकस्ड ऑन हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज,
but many people argued against that. At last, what happened? Indian Constitution did not give the status of national language to any language. And as you know that if we wanted to practice federalism, we have to accept the diversity, right? If you are accepting the diversity, that means we have to accept the different languages also. We are having number of languages, number of states, number of languages. So we have to accept that. It's not possible that we have to impose one particular language on all the states. That really happened. Many people supported Hindi because most of the Indians use Hindi as the mother tongue. But only 40% people are using Hindi as the mother tongue. Rest 60% are using various languages. So that is why only Constitution did not give any the status of national language to any one language. Hindi and English are considered as the official language. Along with the Hindi, 21 other languages also as known as scheduled languages. A central government employee, candidate, you can use any one of this language. Your question paper also will come in those Hindi and English also. You can choose any one language also, right? And English was stopped with the Constitution in 1965. That also created a lot of problem because non-Hindi speaking people, they thought that the stoppage of English, that might be the government is going to impose Hindi on us, especially non-Hindi speaking state like Tamil Nadu and Manipur. They started violence. They protested against this, and that led to violence. They destroyed the government offices, the public services, destroyed public service, etc. So government of India, the government of India, they withdraw the decision of this and they impose English and Hindi both as the national language. Now each and every communication is on these two languages, English and Hindi, both you can use, right? And but government of India is still they are promoting Hindi language. इसका मतलब ये नहीं कि they are imposing Hindi, forcefully imposing Hindi on other states. State having their own languages, they can utilize their own language for the administrative purpose. If I am going to Kerala government offices, suppose I am going to village office, I have to give the application in Malayalam because their office, in that office, state government office, they are following all these things. Application also in Malayalam. The same way, every state they are having their own language, they are promoting their language, they are using their language, right? And next is the center state relation. Center state is not central, center state relation. Center means the center government, state means state government, right? इसका हमें बोलना कि आफ्टर एंड बिफोर 1990 से पहले और 1990 के बाद, that you have to check that two cartoons given in the textbook. Page number 21, Indira Gandhi is distributing the power. 1990 से पहले मैक्सिमम जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेम था, कांग्रेस ही था. लेकिन किसी ट्राइबल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव द पावर टू द राइवल गवर्नमेंट एंड दे मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे ट्राई टू क्या बोलेंगे डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को मिसयूज करके दे ट्राई टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो. But after 1990, the scenario changed because not a single party getting the majority in the center, so they have to accept the support of the regional parties because that time regional parties emerged. Congress का importance कम हो गया. Indira Gandhi assassinated, Rajiv Gandhi assassinated. So after that, Congress का decline हो गया importance and regional parties arose and flourished. That is why in center many regional parties came, and that is why coalition government formed कर दिया. What is coalition government? If suppose not a single party get the majority in center, then the party will form the government with the help of other parties, isn't it? That is what coalition government. That picture, second cartoon is for that only. Vajpayee ji and other colleagues, isn't it? So उसके बारे में आपको समझना है. सो 1920 के बाद जो सिनारियो चेंज हो गया, रीजनल पार्टी के वजह से स्टेट पार्टी को इम्पोर्टेंस मिल गया, स्टेट को इम्पोर्टेंस मिल गया. पहले स्टेट को इम्पोर्टेंस नहीं था, अब इम्पोर्टेंस मिल गया, राइट? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पास एन ऑर्डर
It is not possible to dismiss the state government in an arbitrary manner. अपने मर्जी से state government cannot dismiss the state government. ये भी लेके आया. इस वजह से state का पार्टी और state government को importance मिल गया. Relations change हो गया. पहले का relation नहीं है. पहले सेंटर इंदिरा गांधी जो बोलेंगे उस state government को follow करना पड़ता था. Isn't it this condition? अब ऐसे नहीं है. अपने मर्जी से आप कर सकते हैं. Right? With this we conclude this topic or this session. Only one topic left, decentralization, that we will learn in the next class. With that, we will complete this lesson, second lesson also. Thank you.